ایک باپ جو اپنے ماضی کے گناہوں کے سائے میں جینے پر مجبور ہے، ایک بیٹی جو اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک پراسرار جیسٹر جس کا جادو پچھتاوے کو خوفناک حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ ہالووین کی ایک تاریک رات عجیب و غریب نظارے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مردہ لوگ جیسے واپس لوٹتے دکھائی دیتے ہیں اور ایک خاندان کے گہری راز آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جتنا وہ اس خوفناک صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی ایک ایسی پراسرار اور جان لیوا کھیل میں پھنس جاتے ہیں جہاں کچھ بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ آخر یہ چیسٹر کون ہے اور اس نے انہی لوگوں کو اپنا نشانہ کیوں بنایا ہے؟ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اس خوفناک فلم چیسٹر کا یہ ریکیپ ویڈیو صرف شروع ہوا ہے۔ فلم کی کہانی ہالووین کی ایک خوفناک رات سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بے تحاشا بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے جیسٹر نام کا ایک پراسرار اور خطرناک مسخرہ لگا ہوا ہے، جو نارنجی رنگ کے کپڑے اور لمبی سی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ جیسٹر کا جادو جتنا حیرت انگیز ہے، اتنا ہی خوفناک بھی۔ وہ ایک لمحے میں لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ سکتا ہے اور اگلے ہی لمحے ان کی جان لے سکتا ہے۔ اگر کوئی اس کے فن کا مذاق اڑائے یا اسے نظر انداز کرے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے اس آدمی کو اپنی بیٹی ایما کی یادیں ستانے لگتی ہیں، جسے اس نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے نئی زندگی شروع کر لی ہے اور اس کی دوسری بیٹی جوسلن پیدا ہونے والی ہے، جو ایما کی سوتیلی بہن ہوگی۔ لیکن جہاں بھی وہ جاتا ہے، اسے چھوٹی ایما کی جھلکیاں نظر آتی رہتی ہیں۔ دراصل یہ سب جیسٹر کی خطرناک چال کا حصہ ہے، جو اسے اس کی ماضی کی غلطیوں کا احساس دلا کر مسلسل ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ آخرکار پچھتاوے میں ڈوبا ہوا یہ آدمی ایما کو فون کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن ایما سختی سے اسے رد کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف معافی مانگ لینے سے دل کے زخم نہیں بھرتی۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتی ہے۔ ایما کی بات سن کر وہ آدمی اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وقت جیسٹر دوبارہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ آدمی بے بسی سے کہتا ہے کہ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن ایما اب بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شروع سے ہی جیسٹر اس ساری کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ جب آدمی مکمل طور پر ہمت ہار دیتا ہے تو جیسٹر اپنا آخری کھیل شروع کرتا ہے۔ اچانک اس آدمی کی ٹائی ایک پھندی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ سمجھے بغیر اسے اپنی گلی کے گرد مزید کس لیتا ہے اور دیکھتی ہی دیکھتی وہ پھندا اس کی جان لے لیتا ہے۔ اس کے بعد جیسٹر اس کی لاش کو پانی میں پھینک دیتا ہے۔ اگلے دن اس آدمی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایما، جوسلن اور دوسرے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ایما اپنے والد کی موت پر زیادہ افسردہ نہیں دکھائی دیتی، بلکہ جوسلن سے بھی فاصلے پر رہتی ہے۔ فون پر اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ اس کے والد کو وہی سزا ملی ہے جس کے وہ حقدار تھے۔ اس کے برعکس جوسلن اپنے والد کے غم میں خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی جنازے میں شامل لوگ واپس جانے لگتے ہیں، ایما اچانک اپنے والد کے تابوت کے قریب ایک عجیب سا مسخرہ ناچتا ہوا دیکھتی ہے۔ وہ جیسٹر ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے ہی جیسٹر غائب ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کہیں نہیں جاتا، بلکہ چھپ کر ایما پر نظر رکھتا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد قبرستان کے 2 گارڈ جیسٹر کو وہاں سے نکالنے آتے ہیں، لیکن جیسٹر ان کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بار بار غائب اور ظاہر ہو کر انہیں پریشان کرتا ہے۔ جب ایک گارڈ پولیس کو فون کرنے لگتا ہے تو جیسٹر دوسرے گارڈ کو گرا دیتا ہے۔ گارڈ کا سر زور سے پتھر سے ٹکراتا ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جوتوں کے تسمے آپس میں بندھے ہوئے تھے، جو جیسٹر کی ایک اور خوفناک شرارت تھی۔ دوسرا گارڈ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اچانک اسے شدید کھانسی شروع ہو جاتی ہے اور وہ خون اگلنے لگتا ہے۔ کچھ اس کی گلی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی گلی میں پورا ایک سیب موجود ہے، جو جیسٹر نے اپنی جادو سے وہاں پہنچایا تھا۔ جب جیسٹر اس سے بور ہو جاتا ہے تو وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر اپنے اگلے شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اسی شام ایما جوسلین سے ایک بار میں ملتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان بات چیت کافی خوشگوار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی جوسلین اپنے والد کا ذکر کرتی ہے، ایما کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ جوسلین کو سخت باتیں سناتی ہے اور غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جوسلین بھی اداس ہو کر بار سے نکلنے لگتی ہے۔
लेकिन दरवाजे पर एक आदमी उसे रोक लेता है। वो आदमी बताता है कि वो 15 साल तक उसके वालिद के साथ काम करता रहा है। फिर वो एक चौंका देने वाला इंकिशाफ करता है कि जोसलीन के वालिद के कई तारीक राज थे। वो ये भी इशारा देता है कि जेस्टर का उनकी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक था और वो उन्हें अजीबो-गरीब काम करने पर मजबूर करता था। दूसरी तरफ एमा का सामना एक बार फिर जेस्टर से हो जाता है। जेस्टर उसके सामने ताश के पत्तों की एक गड्डी निकालता है और उसे एक पत्ता मुंतखब करने को कहता है, लेकिन एमा इनकार कर देती है। इससे बचने के लिए वो सड़क की दूसरी तरफ मौजूद एक स्टोर में दाखिल हो जाती है, लेकिन जेस्टर वहाँ भी उसके पीछे आ जाता है। इस स्टोर में 2 छोटे भाई कैंडी खरीद रहे होते हैं। बड़ा भाई लालच में आकर कई कैंडीज उठा लेता है, जबकि छोटा भाई सिर्फ एक कैंडी लेता है और मजीद मांगता है। जेस्टर हाथ हिलाता है और जादू के जरिए उसके लिए एक और कैंडी पैदा कर देता है। ये देखकर बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इजाफी कैंडीज वापस रखने लगता है, लेकिन अचानक उसके बैग के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जेस्टर का हाथ होता है। ये खौफनाक मंजर देखकर दोनों बच्चे चीखते हुए अपनी कैंडीज गिरा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर जोसलीन अपने घर पहुंचती है। उसे घर के बाहर एक मशकूक साया दिखाई देता है। खौफजदा होकर वो दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि उसके दोस्त वहां खड़े हैं। वो फौरन उन्हें घर के अंदर बुला लेती है। कुछ देर बाद एमा एक और स्टोर में जाती है, लेकिन जेस्टर फिर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। शुरू में एमा को लगता है कि शायद वो सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे याद आ जाता है कि यही वो पुरस्रार मस्खरा है जिसे उसने अपने वालिद की आखिरी रसूमात में देखा था। गुस्से में आकर वो जेस्टर को धक्का दे देती है। धक्का लगते ही जेस्टर के हाथ से शीशे की बोतल गिरकर टूट जाती है। वो फौरन टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा उठाता है। एमा को ऐसा लगता है कि शायद जेस्टर उस पर हमला करने वाला है। इसके बाद एक हैरानकुन सीन ये हुआ कि जेस्टर उस शीशे के टुकड़े को अपनी गर्दन पर फेर देता है। उसके गले से खून बहना शुरू हो जाता है और खून के छींटे एमा पर भी पड़ते हैं। चंद लम्हों बाद जेस्टर जमीन पर गिर जाता है और बिल्कुल मुर्दा दिखाई देता है। एमा खौफ से कांपने लगती है, लेकिन अचानक जेस्टर दोबारा उठ खड़ा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब सिर्फ उसकी एक और खौफनाक चाल थी जिसका मकसद एमा को डराना था। खौफजदा एमा वहां से भाग जाती है और दोबारा स्टोर के अंदर पहुंच जाती है। उसके कपड़ों पर खून देखकर दुकान का मालिक घबरा जाता है और फौरन पुलिस को फोन कर देता है। कुछ देर बाद 2 पुलिस अफसर वहां पहुंचते हैं और एमा से सवालात करना शुरू कर देते हैं। एमा उन्हें जेस्टर के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि एमा कोई झूठी कहानी बना रही है। इसी दौरान जेस्टर दोबारा स्टोर में दाखिल होता है। वो अपने हाथों में हथकड़ियां लगाता है और अगली ही लम्हे अचानक गायब हो जाता है। फिर वो दोबारा जाहिर होता है, लेकिन इस बार हथकड़ियां पुलिस वालों के हाथों में लगी होती हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले जेस्टर एक पुलिस वाले के सर पर अपनी टोपी रख देता है। जब वो टोपी हटाता है तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाले का सर ही गायब हो गया हो। सर के बगैर वो पुलिस वाला घबराकर इधर उधर टकराने लगता है। ये मंजर देखकर दुकान का मालिक खौफ के मारे वहां से भाग जाता है। दूसरा पुलिस अफसर खुद को आजाद करता है और फौरन जेस्टर पर बंदूक तान देता है। वो फायर करता है, लेकिन गोली जेस्टर को लगने के बजाय उसके साथी पुलिस वाले को जा लगती है। साथी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। गुस्से और खौफ में वो दोबारा जेस्टर पर गोली चलाता है। जेस्टर हवा में आती हुई गोली को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ये मंजर देखकर एमा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलती है और जेस्टर एक बार फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जोसलिन अपने कमरे में अजीबो गरीब चीजें महसूस करने लगती है। जब वो अपने वालिद की तस्वीर को गौर से देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो तस्वीर से बाहर निकल आए हों। ये मंजर देखकर वो खौफजदा हो जाती है और फौरन नीचे जाकर अपने दोस्तों को करीब लगने वाली एक फेस्टिवल में चलने के लिए कहती है। फेस्टिवल में हर तरफ रोशनी, मौसीकी और लोगों का हुजूम होता है, लेकिन जोसलीन के जहन से वो पुरस्रार नज़ारे नहीं निकलते। थक कर वो एक जगह बैठ जाती है, लेकिन फिर उसे अपने वालिद की झलक दोबारा दिखाई देती है। इस बार वो साई के पीछे चलने का फैसला करती है।
इधर जेस्टर ने जूसलीन के दोस्तों को अपना अगला निशाना बना लिया होता है। वो एक मेज पर रखे कप को उठाता है तो उसके नीचे दांतों का एक सेट नजर आता है। ये किसी और के नहीं बल्कि जूसलीन के एक दोस्त के दांत होते हैं, जिसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। अगले ही लम्हे दूसरा कप उठाया जाता है, लेकिन उसके नीचे कुछ नहीं होता। फिर अचानक उस दोस्त की आंखें अपनी जगह से निकलकर नीचे गिर जाती हैं। वो फौरन बीनाई से महरूम हो जाता है और दर्द से चीखने लगता है। अंधा होकर वो इधर उधर भागता है, जिससे पूरी फेस्टिवल में भगदड़ मच जाती है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं और उसे एक तरफ ले जाते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र जूसलीन पर पड़ती है, जो एक जगह खड़ी अपने वालिद के साथ गुजरे खुशगवार लम्हों में खोई हुई होती है। अचानक जेस्टर एक बार फिर जाहिर होता है। वो जूसलीन के दोस्तों पर हमला कर देता है और उनमें से एक को शदीद जख्मी कर देता है। एक और दोस्त खौफ के मारे बोलने की ताकत खो देता है। तभी जूसलीन अपनी सोचों से बाहर आती है और सीधा जेस्टर के सामने जा खड़ी होती है। वो हाथ जोड़कर उससे इल्तिजा करती है कि वो ये सब बंद कर दे। वो कहती है कि अगर उसके दोस्तों को छोड़ दिया जाए तो वो जेस्टर की हर बात मानने के लिए तैयार है। इसी दौरान एमा, जो अब भी जेस्टर से बचने की कोशिश कर रही होती है, एक फ़ोन कॉल वसूल करती है। कॉल उसकी माँ के नंबर से आ रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद आवाज़ जेस्टर की होती है। जेस्टर अजीब और पुरस्रार अंदाज में बात करते हुए एमा को खबरदार करता है कि वो अपनी पुरानी यादें भुलाकर वहाँ से चली जाए, वरना उसका ये खतरनाक खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। बातों ही बातों में जेस्टर एक अहम राज भी बता देता है। एमा को मालूम हो जाता है कि जॉसलिन भी शदीद खतरे में है। अपनी बहन को अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए एमा फौरन उसे तलाश करने निकल पड़ती है। रास्ते में वो उसी पुल के करीब पहुंचती है जहां उसके वालिद की मौत हुई थी। जैसे ही वो पुल के करीब पहुंचती है, उसे अपने वालिद की एक ताकतवर झलक दिखाई देती है। पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर दबी हुई पुरानी यादें एक एक करके सामने आने लगती हैं। अपने माजी का सामना करते हुए एमा जज्बाती हो जाती है। कई सालों बाद पहली बार वो अपने वालिद को डैड कहकर पुकारती है और इसी लम्हे वो दिल से उन्हें माफ़ भी कर देती है। लेकिन ये जज्बाती लम्हा ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक उसके वालिद का साया उसकी गर्दन पर एक पट्टी लपेट देता है और उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर वो पुल से नीचे गिरने लगती है। फिर वो एक अजीब मंजर देखती है। छोटी जूसलिन और उनके वालिद एक झोपड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ जेस्टर पहले से मौजूद होता है। एमा भी उनके पीछे अंदर दाखिल हो जाती है। वहाँ जाकर वो अपनी सौतीली बहन की जिंदगी का एक ऐसा पहलू देखती है जो उसने कभी नहीं देखा था। वो देखती है कि जूसलिन अपने वालिद के साथ कितनी खुश थी, एक ऐसी खुशी जो एमा को अपनी जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुई थी। और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में हसद, गुस्सा और दर्द को मजीद बढ़ाने लगता है। अचानक एमा अपने वालिद को देखती है, लेकिन इस बार उनके सीने में एक बड़ा चाकू घुसा हुआ होता है। ये मंजर देखकर एमा के आंसू निकल आते हैं। उसकी वालिद पुरसुकून लहजे में पूछते हैं, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो खुश था। एमा समझ नहीं पाती कि हकीकत क्या है, क्योंकि जेस्टर एक बार फिर उसके जज्बात के साथ खेल रहा होता है। तभी जूसलिन वहाँ आती है और एमा का मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो अपनी वालिद की सीने से चाकू निकालती है और एमा के हाथ में थमा देती है। वो कहती है, अगर तुम वाकई इस दर्द से आज़ाद होना चाहती हो तो इसे ख़त्म कर दो। एमा गुस्से में आ जाती है और चीख कर कहती है कि जूसलिन असल में जूसलिन नहीं बल्कि जेस्टर का एक धोखा है। अगले ही लम्हे वो चाकू जेस्टर के पेट में घोंप देती है। जैसे ही चाकू लगता है, सारा मंजर टूट जाता है और एमा खौफ से कांप उठती है, क्योंकि हकीकत में उसने जेस्टर को नहीं बल्कि जॉसलिन को जख्मी कर दिया होता है। जेस्टर साए में खड़ा तालियां बजाता रहता है, जबकि जॉसलिन जमीन पर गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। एमा फौरन उसके पास दौड़ती है और रोने लगती है, लेकिन जॉसलिन कमजोर आवाज में कहती है, फिक्र ना करो, मैं जानती हूँ ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये सब जेस्टर का खेल था। ये सुनकर एमा का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो चाकू लेकर जेस्टर पर हमला करती है, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि वो जितनी बार भी वार करती है, जेस्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आखिरकार एमा चीख कर कहती है, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी बहन से दूर रहो। एमा की ये बात सुनकर जेस्टर खामोशी से वहां से चला जाता है। कुछ अरसे बाद एमा अपनी वालिद की कब्र पर आती है। वो उनसे बात करती है, अपने दिल का बोझ हल्का करती है और गुजरे हुए वाकयात को याद करती है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि जेस्टर अब भी दूर खड़ा उसे देख रहा है।
वो एक बार फिर उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, मगर इस बार एमा उसकी फरीब में नहीं आती। जेस्टर समझ जाता है कि अब उसका एमा पर पहली जैसा असर नहीं रहा, इसलिए वो पीछे हट जाता है। आखिर में एमा और जॉसलिन दोबारा उसी बार में मिलती हैं। दोनों अब भी अपनी दोस्त ट्रिक्स की मौत का गम मना रही होती हैं, जो जेस्टर के खौफनाक खेल का शिकार बन गया था। लेकिन इन तमाम हादसात के बाद दोनों बहनों का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका होता है, और इसी के साथ ये खौफनाक और पुरस्कार फिल्म अपनी इख्तिताम को पहुंचती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की गई रिकैप वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। गुड बाय।